Okay, good morning. Good morning, sir. Okay, we were discussing about what exactly is a queue and what are the different types of queue. So let me just quickly recall. Okay, so if we reconnect with yesterday's lecture, I told you that queue is a data structure. Okay, so queue is a data structure that in which you can insert and delete on, that means you can add or remove. I think I have not shared my screen. So queue is a data structure in which we can add or remove data items from either end. Okay, but there are restrictions, and because of these restrictions, we have different types of queue. Okay, and the first type of queue, or one of the most easiest, the easiest structure, is a linear queue, or also sometimes known as a simple queue. A simple queue or a linear queue is a simple queue is a queue in which you can add or from the rear end, we add elements at the rear end and we delete elements from the front end. Okay, and then we have, okay, so let's have this type. So this is a linear queue, and why it is called linear or sometimes also called simple, because elements are added like this. We go on adding from at the rear end and we go on deleting from the front end. This is what we actually see in a queue in real life. When you go to a cinema hall or anywhere where there is a counter, processing counter, you will see that people just come in and join the queue at the rear end. And when the person at the counter comes, the first person to get the ticket is actually the person standing in the front position. So this is a very this is actually the representation of a real world queue, a queue that we see in real life. Next, the next type of queue is known as a circular queue. Now, a circular queue technically is an optimization of space, because yesterday we saw that when you are working with a linear queue, we actually tend to waste the space that is after the that is before the front position. अगर आपको याद होगा, फ्रंट पोजीशन के पहले का जो स्पेस है हम उसको यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं, बिकॉज हम लास्ट में एलिमेंट्स जोड़ते रहते हैं. एंड अगर आप किसी फिक्स्ड डेटा स्ट्रक्चर में क्यू को इंप्लीमेंट कर रहे हैं जैसे कि एरे, देन कहीं ना कहीं तो आपके पास एक कैपेसिटी होगी. आप एलिमेंट्स को सामने से डिलीट कर रहे हैं, सामने फ्रंट से डिलीट कर रहे हैं, सामने वैकेंट पोजीशंस बन रहे हैं, बट आप नए एलिमेंट्स को लास्ट में जोड़ते जा रहे हैं. So there is a situation, and there will be a situation of course, जब आपके पास सामने जगह होगा लेकिन लास्ट में जगह नहीं होगा. आप उसको क्यू को आप ये कहेंगे कि मेरा क्यू ओवरफ्लो हो गया, बट यू नो द एगोनी इज दैट सामने बहुत सारा जगह आप वेस्ट कर रहे होते हैं. ये प्रॉब्लम होता है लीनियर क्यू का. सो लेट मी ड्रॉ द सिचुएशन वंस अगेन, जो कल की क्लास में नहीं आए थे. लीनियर क्यू के साथ जो प्रॉब्लम है वो ये है दैट सामने बहुत सारा जगह आप वेस्ट कर रहे होते हैं. ओके, सो इससे बचने के लिए ये देखिए, ये लीनियर क्यू की सिचुएशन है. मान लीजिए आपके पास 5 एलिमेंट है और आपने एक एक करके 5 को जोड़ा है और उसके बाद आपने 2 को डिलीट कर दिया. मान लीजिए ए और बी डिलीट हो गए हैं, तो आपके पास सी यहाँ पे है, डी अभी भी यहाँ पे है और ई यहाँ पे है. अब आपको जोड़ना है एफ, एंड ए और बी ऑलरेडी डिलीट हो चुके हैं. ठीक है, सो ए और बी यहाँ पे थे कभी, अब ए और बी को आपने डिलीट कर दिया है. ओके, सो ये वो सिचुएशन है जब आपके पास सामने यहाँ पे स्पेस है जिसको आप यूटिलाइज नहीं कर सकते, बिकॉज आपको नए एलिमेंट्स हमेशा रियर एंड पे जोड़ने हैं. ठीक है, ये आपका रियर एंड है और आपका फ्रंट पे अभी जो एलिमेंट है वो सी है. तो ये जगह वेस्ट हो रहा है. ठीक है, सर्कुलर क्यू इस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है. सर्कुलर क्यू में हम जो करते हैं उसको रैप अराउंड कहते हैं,
या समटाइम दिस इज आल्सो नोन एज रिंग अरिथमेटिक या मॉड्यूलर अरिथमेटिक। इसमें हम क्या करते हैं, अगर हमारे पास सामने जगह है, जैसे मान लीजिए इसी सिचुएशन को दोबारा देखते हैं, अगर हमारे पास सामने जगह है लेकिन हमको और पीछे हम लास्ट एलिमेंट तक आ चुके हैं एंड वी वांट टू ऐड सम न्यू एलिमेंट्स, सो हम लास्ट के बाद वापस सामने आ जाते हैं एलिमेंट को जोड़ने के लिए। नाउ दिस कैन क्रिएट अ प्रॉब्लम कि हमको ये कैसे पता चलेगा कि अगला एलिमेंट कौन डिलीट होने वाला है। ओके, सो इससे बचने के लिए देखिए ई के बाद हम एफ को यहाँ जोड़ देते हैं और इसको ट्रैक करने के लिए कि एक्चुअली कौन सा एलिमेंट सबसे सामने है, हम पॉइंटर्स यूज करते हैं। तो फ्रंट पॉइंटर हमेशा उस एलिमेंट को पॉइंट करता है जो अगला डिलीशन में जाएगा, एंड रियर उस एलिमेंट को पॉइंट करता है जो सबसे लास्ट में ऐड हुआ है। ठीक है, और हम अभी इसका इम्प्लीमेंटेशन डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तीसरे टाइप का जो क्यू है जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कल, वो है सर्कुलर डबल एंडेड क्यू। नाउ डबल एंडेड क्यू, इसको प्रोनाउंस करते हैं डेक। ठीक है, दिस इज प्रोनाउंस्ड एज डेक। मैं आपको डबल एंडेड क्यू अभी जरूर बोल रहा हूँ, आगे जाके मैं भी इसको डेक ही बोलूंगा। सो इन डेक प्रॉब्लम, द डेक का कंसेप्ट वैसे बाय इटसेल्फ डेक डज नॉट मेक एनी सेंस, क्योंकि डेक का डेफिनेशन ही कहता है यू कैन रिमूव एंड डिलीट फ्रॉम बोथ एंड्स। बट यू नो इन जनरल आपको शायद ही कोई ऐसा एप्लीकेशन मिले जहां पे आप रिमूव एंड डिलीट बोथ एंड से करेंगे। जनरली हम जब डेक को यूज करते हैं, वी यूज इट विद सम काइंड ऑफ रिस्ट्रिक्शंस, and the restrictions are on either input or output. So let me tell you the common form of deck. एक common form है उसमें ये है that new element will come at one end. Generally जिस end से हम element को जोड़ते हैं उसको rear end ही बोलते हैं. But you can remove elements from both the ends. That means deletion is possible from the front like a normal queue, and you can also delete from the rear end. And we have another option of deck in which new elements can be added from both the ends. So like you can add new element from both the ends, but deletion is only possible from one end, and generally that end is taken as the front end. Okay, so these are like two variations of deck, double ended queue, जहां पे आप या तो input पे restriction कर रहे होते हैं या output में. But in general, the general definition of deck says that you have a queue, you can delete from either end. That means you can take away elements from either end, or you can add एलिमेंट्स फ्रॉम आइदर एंड। दैट मींस आप किसी भी एंड पे एलिमेंट को जोड़ भी सकते हैं, किसी भी एलिमेंट से एलिमेंट्स को निकाल भी सकते हैं। दिस इज द जनरल डेफिनेशन ऑफ अ डबल एंड। ओके, नाउ अपार्ट फ्रॉम दिस, एनी डाउट्स इन अप टू दिस पॉइंट? एनी डाउट्स अप टू दिस? नो सर। ओके, सो ये आई थिंक मैंने आपको कल बता दिया था। अपार्ट फ्रॉम दिस देयर इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्यू नोन एज प्रायोरिटी क्यूज। Now, what is a priority queue? Okay, जरा सोचिए आप अगर हॉस्पिटल में हैं, ओके, सोचिए अगर आप हॉस्पिटल में हैं एंड इफ यू सी द सिनेरियो ऑफ द हॉस्पिटल, आपके पास अगर आप देखेंगे पेशेंट्स वहां पे आते जा रहे हैं, यू नो, एंड पेशेंट्स के साथ देयर इज ए नोशन ऑफ कि कौन सा पेशेंट कितना अर्जेंट है, कितना जल्दी वो डॉक्टर को उसको एंटरटेन करना पड़ेगा या डॉक्टर को उसको अटेंड करना पड़ेगा। ठीक है, नाउ द प्रॉब्लम इज दैट वी कैन हैव पेशेंट्स विद डिफरेंट लेवल्स ऑफ अर्जेंसी। किसी को ज्यादा अर्जेंटली डॉक्टर को दिखाना है बिकॉज बहुत ही क्रिटिकल है, कोई नॉर्मल है और कोई इन द वे मिड है। और ये भी हो सकता है कि कुछ ऐसे पेशेंट भी हमारे पास जिनका अर्जेंसी का लेवल सेम है, मतलब दो एक साथ क्रिटिकल पेशेंट आ गए या दो एक साथ ऐसे पेशेंट आ गए जो बिल्कुल नॉर्मल है। सो प्रायोरिटी क्यू का कंसेप्ट ये है दैट जो एलिमेंट्स ज्यादा अर्जेंट हैं वो सामने आ जाए, यानी वो सामने की तरफ जुड़े, और जो एलिमेंट्स कम अर्जेंट हैं वो पीछे की तरफ होते हैं। सो दैट मीन्स अब आप प्रायोरिटी क्यू को इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, उसके दो तीन तरीके हैं। सबसे आसान तरीका ये है कि आप एलिमेंट के साथ उसकी प्रायोरिटी को भी नोट कर लें। ठीक है, एलिमेंट के साथ अगर आप प्रायोरिटी को नोट करते हैं तो उसमें एक प्रॉब्लम ये है कि फॉर एग्जांपल ये देखिए आपके पास एक एलिमेंट है ए जिसकी प्रायोरिटी है से 4, मतलब ये बहुत जल्दी इसको डॉक्टर को दिखाना है, बहुत ज्यादा क्रिटिकल है। देन यू हैव अनदर पेशेंट बी जिसकी प्रायोरिटी है 2, ये लगभग नॉर्मल है। यू हैव अनदर पेशेंट सी, इसकी प्रायोरिटी भी 2 है। यू हैव अ पेशेंट डी जिसकी प्रायोरिटी 1 है। ये एकदम फिट है, इसको बस ऐसे ही कुछ ऐसे काम है कुछ डॉक्टर से।
सो प्रायोरिटी बेसिस पे मैंने अगर शॉर्ट करके रख भी लिया, अब प्रॉब्लम ही होता है कि जब कोई नया पेशेंट आता है, फॉर एग्जांपल यहाँ से कोई नया पेशेंट आ रहा है जिसका प्रायोरिटी है, मान लेते हैं उसका नाम है ई और इसकी प्रायोरिटी है 3, ठीक है, इसकी प्रायोरिटी 3 है। सो अगर मुझे इसको इंसर्ट करना है तो टेक्निकली ये दिस शुड बिलोंग टू दिस स्पेस, ठीक है, ये इसको 4 और ए और बी के बीच में आना चाहिए। लेकिन जैसे आप जानते हैं क्यू का डेफिनेशन कहता है कि आप इंसर्शन किसी एक एंड में कर सकते हैं, बीच में नहीं। तो या तो आप ई को यहाँ रख सकते हैं या फिर आप ई को यहाँ रख सकते हैं। ओके, सो वी डोंट रिप्रेजेंट अ प्रायोरिटी क्यू लाइक दिस, क्योंकि आप बीच में इंसर्ट करने जाएंगे तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, बिकॉज इन सब एलिमेंट्स को हमको राइट पे शिफ्ट करना पड़ेगा, ठीक है। सो वी हैव अ डिफरेंट वे टू रिप्रेजेंट प्रायोरिटी क्यू, हम इस बारे में अगली क्लास में बात करेंगे, ठीक है। बट प्रायोरिटी क्यू इज वंस अगेन अ काइंड ऑफ अ क्यू in which we not only have the elements but we also have a priority of the element in terms of processing, ठीक है। अब आप हाई प्रायोरिटी को पहले प्रोसेस करते हैं कि लो प्रायोरिटी को, ये डिपेंड करता है आपके एप्लीकेशन में। यानी जैसे मैंने यहाँ पे 4 लिखा हुआ है तो ये इसका क्रिटिकलनेस है कि ये बहुत ज्यादा क्रिटिकल है, ठीक है। ओके, नाउ लेट्स कम बैक टू, सो these are the different types of queues, right? Linear queue, wastage of space; circular queue, optimized utilization of space. Then we have double-ended queue, in which insertion deletion are actually done on both ends with some restrictions as per the application. Priority queue, in which we not only have elements but we also have elements with their priority. And when we talk about deleting an element, we try to delete the element with the highest priority. Okay, and this is as per the demand of the application. अगर कोई एलिमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो नेचुरली इसको पहले डिलीट करना है बिकॉज उसकी अर्जेंसी ज्यादा है। ओके, नाउ वी विल कम बैक टू प्रायोरिटी क्यूज लेटर। नाउ लेट अस डिस्कस द प्रोग्राम ऑफ सर्कुलर क्यू। ओके, बट बिफोर वी डिस्कस, सर्कुलर क्यू बनाने वाले हैं। सो व्हाट इज द इनिशियल कंडीशन ऑफ अ सर्कुलर क्यू? क्या जब सर्कुलर क्यू आप स्टार्ट करेंगे तो इनिशियल कंडीशन क्या रहेगा? I want you to take a note of this. Yeah, सबसे पहले सर्कुलर क्यू कैसे स्टार्ट करेंगे? टॉप और सॉरी फ्रंट एंड रियर को कहाँ रखेंगे? -1 -1 पे। ओके, ठीक है। तो पहला पॉइंट नोट कर लीजिए, जब हम सर्कुलर क्यू को स्टार्ट करेंगे, प्लीज नोट इट डाउन इन योर कॉपी, हमारा जो टॉप रियर एंड फ्रंट है दे विल बी एट -1, ठीक है। एंड दीज आर द इंडेक्सेस, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। वैसे तो मैं 5 के लिए डिस्कशन कर रहा हूँ, बट इन जनरल दिस विल बी मैक्स -1, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको मैक्स -1 रख रहा हूँ। मैं 5 एलिमेंट का क्यू लेके डिस्कस करूंगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने स्टैक में किया था, ठीक है। हम डिस्कशन कर रहे हैं 5 के लिए, लेकिन इन जनरल मैं इसको मैक्स -1 रख रहा हूँ ये बताने के लिए कि द कोड कैन बी जनरलाइज्ड। ओके, नाउ सो एट द बिगिनिंग द इनिशियल कंडीशन इज दैट, एंड दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर, the front and rear both will point to -1. So this is our condition. This is also our condition to check whether the queue is empty or not. क्योंकि अगर queue empty है तो front and rear दोनों -1 पे होंगे। Okay, now can you tell me the code या the algorithm for is empty? Queue is empty कैसे पता चलेगा? क्या queue is empty? Can you give me the algorithm for is empty? कैसे पता चलेगा क्यू एम्प्टी है कि नहीं? कम ऑन, क्यू डॉट सर जब फ्रंट और रियर सर -1 होगा। या तो क्यू डॉट फ्रंट इक्वल टू -1। अच्छा, क्या मुझे इसके साथ एंड या और लिखने की जरूरत है? शुड आई राइट एंड क्यू डॉट रियर इक्वल टू -1, या फिर फ्रंट अकेले ही काफी है सामान लेके? क्या एंड लगाने की जरूरत है, एंड या और, या फिर अकेले फ्रंट से हो जाएगा? सर एंड लगाना पड़ेगा रियर देखने के लिए। क्यों लगाना पड़ेगा एंड? तो क्योंकि फ्रंट और रियर जब एक साथ होंगे तभी एम्प्टी होगा ना, -1 पे लगेगा। नो, एक्चुअली दिस इज नॉट द आंसर। एक्चुअली आपको एंड लगाने की जरूरत नहीं, ठीक है। अकेले फ्रंट से वी कैन डू दिस, एंड द रीजन इज दैट फ्रंट स्टार्टिंग -1 पे है। दिस इज द ओनली कंडीशन कि जब हमारा फ्रंट -1 पे है, इसके बाद अगर एक भी एलिमेंट होगा तो फ्रंट आगे होगा यहाँ पे कहीं, ठीक है। तो फ्रंट -1 पे है, ये अकेला काफी है, सफिशिएंट है इस बात को डिनोट करने के लिए कि वी स्टिल डोंट हैव एनी एलिमेंट इन द क्यू।
ठीक है। सो कुछ बुक्स में आपको या अननेसेसरी रियर को भी कंडीशन जोड़ा जाता है, बट यू नो फ्रंट अलोन फ्रंट कैन टेक दिस। ठीक है, आपको अलग से रियर को जवाब करने की जरूरत नहीं है। सो फ्रंट -1 पे है, दिस इज सफिशिएंट इनफ टू अंडरस्टैंड द क्यू इज एम्प्टी। ओके ओके, नेक्स्ट। ओके, सो फ्रंट इज -1, क्या करना है बताइए? अगर फ्रंट -1 है तो सो द क्यू इज एम्प्टी। तो या तो आप यहाँ पे मैसेज प्रिंट कर सकते हैं, सॉरी मैसेज मत प्रिंट कीजिए, आप रिटर्न क्या करेंगे बताइए? ट्रू एम्प्टी है और हमको एम्प्टी चेक करना, तो क्या रिटर्न करेंगे? ट्रू। और अगर ऐसा नहीं है तो फॉल्स। एल्स, या तो यहाँ पे आप या तो एल्स लिख सकते हैं, और अगर आप थोड़ा सा सोचेंगे इस एल्स की जरूरत नहीं है, तो टेल मी इस एल्स की जरूरत क्यों नहीं है? ये वाला एल्स क्यों नहीं जरूरत है इसकी? क्यों जरूरत नहीं पड़ती इस एल्स की? ओके, मैं बताता हूं आपको। रिटर्न इज द लास्ट स्टेटमेंट ऑफ द फंक्शन। अगर मान लीजिए फ्रंट -1 के बराबर है एक्चुअली, तो हम यहीं से रिटर्न कर जाएंगे ना। ठीक है, अगर रिटर्न हो गया तो फंक्शन वहीं पे खत्म, नीचे लाइन में वही पहुंचेगा जो वहां से रिटर्न नहीं होगा। तो आप इस एल्स को लिखिए या ना लिखिए, द कोड विल बिहेव सेम। ठीक है, नाउ दिस वाज क्यू एम्प्टी, ये तो बड़ा आसान था। अब थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन, ध्यान से सुनिए। नाउ आई एम आस्किंग यू टू राइट द एल्गोरिथम फॉर Q is full, and याद रखिए we are working on a circular Q. So can you tell me the conditions for full Q? Okay, let me write down. Okay, क्या आप मुझे बता सकते हैं Q full है ये क्या? सर फुल के लिए फ्रंट को 0 होना चाहिए और रेयर को मैक्स -1 होना चाहिए। Okay, just hold on. Somebody just told me कि Q फ्रंट के फुल के लिए फ्रंट को 0 होना पड़ेगा एंड रियर को -1 होना पड़ेगा। सो मैं, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। सो मैं यहाँ पे जैसा इन्होंने बोला है वैसे ही बना देता हूँ। ओके, और हम एलिमेंट्स को ना बाय डिफॉल्ट ABCDE ऑर्डर में जोड़ेंगे ताकि डिस्कशन करना इजी पड़े। ओके, तो समबडी सेड कि सर अगर आपका फ्रंट 0 पे है और रियर मैक्स -1 पे है, मतलब 4 पे है, तो क्यू फुल है। ओके, डू यू एग्री विथ मी दिस फेलो? ये देखिए, ये है फ्रंट और ये है रियर, दिस इज 0 एंड दिस इज, वैसे तो ये 4 है पर मैं इसको मैक्स -1 लिखूंगा। ठीक है, मैं इसको मैक्स -1 लिखूंगा ताकि हमारा डिस्कशन जो है वो जनरलाइज हो। सो डू यू एग्री दिस इज ओके? No, sir, because this is only just one condition, but there can be Excellent. maximum. Excellent. What's your name? अभी जिन्होंने आंसर दिया, आपका नाम क्या है? Adiba, you are perfectly correct. This is actually half of the condition, one of the condition. But can you tell me Adiba, एक और कौन सा condition है जिसमें Q full होगा और वो इससे अलग है? Sir, Yes. it can be something like front is not at 0, but at some other point. Just give me the point. कहाँ पे है? Front can be at max -1. Front can be at max -1. Okay. And Now, rear students, can be at 3. ओके स्टूडेंट्स, प्लीज ध्यान दीजिएगा। अदिबा कह रहे हैं कि फ्रंट यहाँ पे है। इस क्वेश्चन में पुराने वाले एग्जांपल में फ्रंट यहाँ पे था और रियर यहाँ पे था। प्लीज माइंड कि मैं कौन सा एफ लिख रहा हूँ, कौन सा आ लिख रहा हूँ। या अदिबा, रियर कहाँ पे होना चाहिए? 3। ओके, सो अदिबा कह रही है कि फ्रंट 4 पे है एंड रियर 3 पे है। ओके, इस एग्जांपल के लिए मैं 0 1 2 3 4 लिख देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन कम हो। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, जो अदिबा कह रही है क्या वो पॉसिबल है? ये 4 है, ठीक है, दिस इज 4। स्टूडेंट्स, क्या ये पॉसिबल है? तो पॉसिबल है ये। पॉसिबल है। अदिबा कैन यू, अदिबा अगर हम ABCDEFG उस सीक्वेंस को फॉलो करें, ठीक है, मतलब हम ये मान के चले कि एलिमेंट्स ABCD के ऑर्डर में आए, कैन यू टेल मी ये सिचुएशन कब आ सकता है? मतलब ABCD कहाँ पे होना चाहिए? मैं यहाँ पे E ले लूँ, E ये मान के कि ABCDE यहाँ पे आया था, ले सकता हूँ? Yes, sir. ओके, यहाँ पे मैं F ले रहा हूँ, ये 6th एलिमेंट था जो ऐड हुआ, F G H एंड I। ओके स्टूडेंट्स, जरा सोच के देखिए, अगर मैं ABCDEFGHI उसी ऑर्डर में जोड़ता हूँ, सो मैं आपको ये कह रहा हूँ कि मैं ABCDEFGHI उसी ऑर्डर में जोड़ रहा हूँ और मैंने डिलीट किया है ABCD को, तो क्या ये सिचुएशन आ सकता है?
ए बी सी डी ई एफ जी, ठीक है, ये सिचुएशन आ सकता है। इमेजिन कीजिए यहाँ पे किसी जमाने में ABCD रहा होगा, जिनको मैंने डिलीट किया है, ठीक है, और ये ABCD डिलीट हो गए बाहर, और यहाँ पे E पहले से था, ठीक है, ये चारों डिलीट हो गए, तो फ्रंट यहाँ से खिसक खिसक के यहाँ आ गया, और अब मैं वापस एलिमेंट्स को जोड़ जोड़ के FGHI को जोड़ा। ओके, सो अब अगर मैं इसको प्रोग्रामेटिकली लिखना चाहूँ, अगर मैं इसको प्रोग्राम में लिखना चाहूँ तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा? कैन यू टेल मी इसका सी में मैं इसको कैसे लिखूँ एज ए कंडीशन? डायग्राम बनाना तो बहुत आसान है, बट कैन यू टेल मी इसका कंडीशन क्या होना चाहिए? या कैन यू गिव मी द कंडीशन? कैसे लिखूं मैं इसको? यस, देयर आर टू कंडीशंस ना, कैसे लिखूं? कम ऑन, इफ Q का फ्रंट, कम ऑन गिव मी द फर्स्ट वन, Q का फ्रंट 0 पे है एंड Q का रियर कहां पे है? मैक्स -1 पे। ये पहला कंडीशन ठीक है? पहला कंडीशन ठीक है? यस सर। ओके, और अगर मुझे, और दूसरे कंडीशन लिए क्या करूं मैं? सर Q का फ्रंट -1 इज इक्वल्स टू रेयर Q का रेयर। ओके, तो यहाँ पे और आएगा क्या? और एंड यहाँ पे और आएगा ना, और Q का फ्रंट -1 इज इक्वल टू Q का रियर। ओके, Q का फ्रंट -1, ओके फाइन फाइन, ठीक है। तो ये दो कंडीशन है, और दोनों के बीच में मैंने एंड लगाया। यहाँ पे एंड लगाया इसलिए क्योंकि, ओके, यहाँ पे एंड इसलिए लगाया है क्योंकि फ्रंट 0 पे है एंड रियर 4 पे है, और इसलिए लगाया क्योंकि Q इससे भी फुल हो सकता है और अल्टरनेटिवली Q इससे भी फुल हो सकता है, और ये कंडीशन ही है कि रियर और फ्रंट के बीच में 1 का डिफरेंस है। ओके, बट नाउ द टफ क्वेश्चन फॉर यू, ध्यान से सुनिए। ये दो कंडीशन की जगह क्या हम इसको एक ही कंडीशन में कर सकते हैं? क्या हम दो कंडीशन ना लिख के कैन बी कंप्रेस दिस इनटू अ सिंगल कंडीशन? Can we write these two conditions into a single condition? Okay, so what I am going to do, मैं इसका एक सर्कुलर फॉर्म बनाने वाला हूं उसको समझने के लिए। Let us try to draw a circular form of this. ठीक है, लॉजिकल व्यू देखने के लिए, राइट? सो मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है, यहाँ पे माउस से ड्राइंग करना मुश्किल है, बट आई विल रिक्वेस्ट यू टू ड्रॉ दिस डायग्राम विद मी। जरा इसको सर्कुलर फॉर्म में बनाइए। हमारे पास 5 एलिमेंट है। लेट अस ड्रॉ दिस इन दिस फैशन। 5 सेक्शंस में डिवाइड कीजिए, ठीक है? ओके, लेट द इंडिसेस बी 0, ये 0 एलिमेंट है, ये 1 एलिमेंट है, ये 2 एलिमेंट है, 2 इंडेक्स है। ओह, आई एम सॉरी, मैंने एक कम बनाया। नाउ दिस इज 5। ओके, ये 3rd एलिमेंट है और ये 4th एलिमेंट है। ओके, मुझे बताइए पहले सिचुएशन में ए यहाँ पे है 0 में, बी यहाँ पे है, सो D and E। ओके, पहले सिचुएशन में, ये पहले सिनारियो में अगर हम फ्रंट एंड रियर को मार्क करें तो फ्रंट 0 पे है, मतलब फ्रंट है यहाँ पे, ठीक है? दिस इज आवर फ्रंट, एंड रियर कहाँ पे है? मैक्स -1 पे। ये है मैक्स -1, ये है रियर, ठीक है? ये है फर्स्ट सिचुएशन। कैन यू ड्रॉ द डायग्राम फॉर द सेकंड सिचुएशन ऑल्सो? कैन यू ड्रॉ इट फॉर द सेकंड सिचुएशन एंड सी द डिफरेंस? कुछ कॉमन चीज दिखा क्या आपको दोनों में? कुछ कॉमन बात है दोनों डायग्राम में?
Did you notice something common? So this is 0, this is 1, this is 2, this is 3, and this is 4. Yeah, so are we connected? मुझे कुछ response नहीं आ रहा. Yes sir. ओके, सो इसका मुझे डायग्राम बनाने में मदद कीजिए. 0 पे कौन है? F है. 1 में कौन है? G है. 2 में कौन है? H है. प्लीज ड्रॉ दिस डायग्राम इन योर कॉपी प्रॉपर्ली. I यहाँ पे है एंड E यहाँ पे. ओके, सो कैन यू जस्ट पॉइंट द फ्रंट एंड रियर फॉर मी इन दिस डायग्राम? फ्रंट कहाँ पे है? 0 पे. सो दिस इज फ्रंट एंड रियर कहाँ पे? ओके, फॉर्चुनेटली फ्रंट एंड F दोनों सेम हो गया. एंड रियर कहाँ पे है? ई में, मतलब यहाँ. ओके, सो कुछ नोटिस किया आपने? दोनों डायग्राम में कुछ कॉमन है? दोनों डायग्राम में कुछ कॉमन है? यस सर. हाँ, क्या कॉमन है? द फ्रंट और रियर सर आजू बाजू में. या आजू बाजू में है. या वेरी गुड. फ्रंट एंड रियर एडजेसेंट है. फ्रंट एंड रियर एडजेसेंट है. ठीक है, एक बिल्कुल रियर के आगे वाला फ्रंट है. मैं ऐसा बोल सकता हूँ ना, रियर के आगे वाला फ्रंट है? बोल सकता हूँ? यस सर. ओके, रियर के आगे वाला फ्रंट है, लेकिन आगे वाला इन द सेंस किस तरीके से आगे वाला? ये नॉर्मल आगे नहीं है, कुछ मैथमेटिक्स है इसमें. किस तरीके से आगे है वो? इसको बोलते हैं रैप अराउंड. ठीक है, रैप अराउंड मतलब आप जैसे रैप करते हैं किसी गिफ्ट को. 4 के बाद अगर मैं वापस 0 पे जाऊं, उस लॉजिक में, मैं उस मैथमेटिक्स में, अगर मैं 0 1 2 3 4 पे वापस 0 पे जाऊं, लाइक दिस 0 1 2 3 4, फिर 0 1 2 3 4, फिर 0 1 2 3 4. अगर मैं इस मैथमेटिक्स में आगे बढ़ूं तो रियर के आगे वाला फ्रंट. ठीक है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? नोट कर लीजिए आप. इसको हम लिख सकते हैं इफ रियर प्लस 1 मॉड मैक्स. यू नो, मैंने कल डिस्कस किया था शायद कि जब हम मॉड लेते हैं, अगर मैं पास 5 से मॉड लेते जाऊं तो नंबर्स का मॉड कुछ ऐसा आएगा. 0 1 2 3 4, फिर 0 हो जाएगा, फिर 0 1 2 3 4, फिर 0. राइट, हमने कल डिस्कस किया था मॉड का लॉजिक कैसा होता है. राइट. सो अगर मैं रियर का अगला एलिमेंट निकालना चाहता हूं कि रियर का अगला वाला कंपार्टमेंट कौन सा है, तो मुझे लिखना पड़ेगा रियर प्लस 1. लेकिन रियर प्लस 1 4 के बाद 5 हो जाएगा. अगर मुझे रैप अराउंड लॉजिक में या रैप अराउंड करके मुझे रियर का अगला कंपार्टमेंट देखना है, तो किसी भी चीज को प्लस 1 करने के बाद हमको मॉड मैक्स करना पड़ता है, ताकि जो आंसर है वो 0 और 4 के बीच में रहे. सो इफ रियर प्लस 1 मॉड, अच्छा किसका रियर? क्यू का रियर, क्यू डॉट रियर. अगर क्यू डॉट रियर प्लस 1 इक्वल टू क्यू डॉट फ्रंट है, तो ये क्यू आपका फुल है. दैट मीन्स आपका जो क्यू है वो फुल है. अब आप एग्री करते हैं मेरे साथ? कोई एग्री विद मी? यस सर. ओके, इसको नोट कर लीजिए. मैं यहाँ पे वेट करूंगा आपके डाउट्स के लिए. ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स. अगर आपने ये सर्कल वाला डायग्राम बनाया है, रिंग वाला डायग्राम, तो ये आपको क्लियर होगा. ये क्वेश्चन गेट में आया था एक बार, जो मैं आपको बता रहा हूँ. ठीक है, वो कंडीशन से घुमाने की कोशिश करेंगे आपको. ये रिंग का डायग्राम मुझे बताइए किसी को डाउट हो गया. ये लॉजिकल व्यू जो है वो क्लियर होना चाहिए आपको. सर ब्लॉक वाले में आपने रेयर आई को दिया है और फ्रंट ई को दिया है, और सर्कुलर वाले ओके सॉरी, मैंने डायग्राम गलत बनाया. ब्लॉक वाले में ओके फाइन. यस, थैंक यू. किसी ने अभी तक नोटिस क्यों नहीं किया था? ओके, रियर आई है, सॉरी फ्रंट ही है. अब ठीक है. E front and I rear. फ्रंट शुड बी एट ई, राइट? बिकॉज अगर मैं ऐसा लिखता हूं तो ये इस कंडीशन में सेटिस्फाई नहीं होगा. राइट. सो एक्चुअली क्या होना चाहिए? हमारा कंडीशन देखो क्या है. फ्रंट रियर के आगे वाला फ्रंट है. ठीक है,
रियर के आगे वाला फ्रंट है, दैट मीन्स करेक्ट डायग्राम क्या होना चाहिए, रियर यहाँ पे एंड फ्रंट यहाँ पे। अब ठीक है, अब ठीक है, ठीक है, रियर के आगे वाला फ्रंट होना चाहिए। ओके, वेरी गुड, एटलीस्ट आप देख तो रहे हैं कम से कम। या सो आगे बढ़ सकते हैं, डन, यस नो, Yes. ओके, वेरी गुड। अगर ये डायग्राम क्लियर है तो बहुत सारा काम हो गया। ओके, नेक्स्ट, इज फुल हो गया, इज एम्प्टी हो गया। नाउ कैन यू टेल मी द लॉजिक टू डू क्या बोलते हैं उसको, ऐड को ना हम लोग एनक्यू ऑपरेशन बोलते हैं, ठीक है, कुछ लोग ऐड बोलते हैं। ऐड क्यू के केस में ये वर्ड इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एनक्यू एंड डीक्यू, जैसे स्टैक में पुश पॉप होता है, बट फिर भी हम एनक्यू ही बोलेंगे। ओके, तो ऐड करते वक्त मुझे कॉल बाय रेफरेंस यूज करना पड़ेगा। एनी रीजंस व्हाई? ऐड करते वक्त मुझे कॉल बाय रेफरेंस यूज करना पड़ेगा, क्यों? ऐड में कॉल बाय रेफरेंस क्यों यूज करना पड़ेगा? कैन यू टेल मी, ऐड में कॉल बाय रेफरेंस क्यों यूज करना पड़ेगा? ये देखो, हाँ ये देखो, ये पॉइंटर है, ये क्यू पॉइंटर है, ठीक है, कॉल बाय रेफरेंस, सॉरी क्यू का स्पेलिंग गलत है, ठीक है, क्यू पॉइंटर है ये। Why क्यू पॉइंटर? Because we need to use call by reference to make the changes. हमें चेंजेस करने हैं ना, हमें ऐड करने आए ना, तो यहाँ पे कॉल बाय रेफरेंस है। जब भी आपको फंक्शन से वेरिएबल को चेंज करना पड़े, we need to use call by reference, ठीक है? ओके, नाउ कैन यू टेल मी ऐड कैसे करेंगे? कैन यू जस्ट गिव मी द एल्गोरिथम, सूडो कोड जैसा? चलो मैं बताता हूँ। तो अगर इज फुल है क्यू, ठीक है, वो देख लेंगे बाद में देख लेंगे कि कहाँ पे एस्टेक लगाना है। अगर इज फुल है तो ऐड कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते, राइट? कांट ऐड, ठीक है, राइट? अगर क्यू फुल है तो जोड़ सकते हैं क्या? नो। ओके, ठीक है, ठीक है, तो हम वो मैसेज वगैरह देके निकल जाएंगे। अगर फुल नहीं है, ठीक है, अगर फुल नहीं है, अपन इस पार्ट में आ गए, तो बताओ ऐड कैसे करेंगे? सर फ्रंट और रियर को 0 दे देंगे। फ्रंट एंड रियर को 0 कर दोगे, चाहे एलिमेंट को किसी भी पोजीशन पे ऐड कर रहे हैं? नहीं सर, कहीं क्यू ई हुआ तब। हाँ, नहीं एम्प्टी तो बाद में, पहले बताओ सबसे फर्स्ट लाइन क्या करोगे? किसको बढ़ाए, फ्रंट को कि रियर को? Rear. रियर को बढ़ाए, अच्छा। तो आप कह रहे हैं क्यू की जो क्यू है, क्यू के रियर को आगे बढ़ा देते हैं, ठीक है। और अब मैं क्या करूं क्यू के रियर को आगे बढ़ाने के बाद? अब मैं क्या करूं? ऐड एलिमेंट एट दिस रियर पोजीशन, राइट? काफी है क्या? रियर को आगे बढ़ा के एलिमेंट को जोड़ दूं, बस इतना काफी है? इतना काफी है क्या? अच्छा, अब दो सिचुएशन आते हैं, देखिए ध्यान से। एक सिचुएशन आता है कि आप एम्प्टी क्यू में ऐड कर रहे हैं, ये देखिए ये एम्प्टी क्यू है। और दूसरा सिचुएशन आता है कि आप एक ऐसे क्यू में ऐड कर रहे हैं जिसमें फ्रंट रियर के पहले है, मतलब जैसे नॉर्मल होता है। और एक सिचुएशन और आता है, देखिए जरा इसको समझने की कोशिश कीजिए और इन डायग्राम्स को कॉपी बनाते रहिए। पहला सिचुएशन जिसमें फ्रंट एंड रियर दोनों -1 को पॉइंट कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा सिचुएशन ये देखिए, मैं बता देता हूँ, ये है फ्रंट एंड रियर पॉइंट कर रहे हैं -1 को, यही फ्रंट है यही रियर है। ये कब होगा स्टूडेंट्स? ये पहला सिचुएशन कब होगा? कम ऑन, ये पहला सिचुएशन कब होगा? जब एम्प्टी होगा। ओके Empty है. ओके, दूसरा सिचुएशन जब आपके पास क्यू में पहले से कुछ एलिमेंट है, जैसे मान लेते हैं ए है, बी है और सी है, और आपको एलिमेंट जोड़ना है, ठीक है। तो यहाँ पे रियर पॉइंट कर रहा होगा इसको, रियर पॉइंट कर रहा होगा सी को, फ्रंट नहीं ए को नहीं बनाऊंगा मैं, मान लेते हैं ए हट गया है, फ्रंट पॉइंट कर रहा है मान लेते हैं यहाँ पे बी को, ठीक है। ये फ्रंट है। इस सिचुएशन में, जिस सिचुएशन में अभी बना रहा हूँ, यहाँ पे अगर आपको नया एलिमेंट जोड़ना है डी, आपको नया एलिमेंट जोड़ना है डी, तो बताइए आप क्या करेंगे? किसको बढ़ाएंगे, फ्रंट को, रियर को, कि दोनों को? सर रियर को। रियर को बढ़ाएंगे, ठीक है। तो आप रियर को यहां से यहां लाएंगे, रियर इक्वल टू रियर प्लस 1, ठीक है। और फिर आप इस नए लोकेशन में डी को ऐड करेंगे, बस, और कुछ नहीं करेंगे, राइट? राइट? यस सर।
ओके, आप जरा इसके बारे में सोचिए, ये रैप अराउंड हो चुका है, ठीक है, घूम के आ गया पीछे से, हमारे पास ए बी सी था, वो हट गया है, हमारे पास अभी भी ई बाकी है यहाँ पे, ई अभी भी डिलीट नहीं हुआ है, तो नहीं ई नहीं, एक सेकंड, हाँ हमारे पास ई डिलीट नहीं हुआ है, हमारे पास डी भी डिलीट नहीं हुआ है, ओके, तो अगर डी और बाकी है तो फ्रंट यहाँ पे है, ए बी सी डिलीट हो चुका है, फ्रंट यहाँ पे है, फ्रंट ने अभी तक डिलीट नहीं किया, और रियर यहाँ पे है, लेकिन अब आपको जोड़ना है इसमें एफ को, यू वांट टू ऐड एफ, और याद रखना कि एफ कहाँ जाएगा, एफ के लिए पीछे जगह नहीं है, एफ को कहाँ जोड़ना पड़ेगा, 0 पोजीशन पे। 0 पोजीशन, ठीक है, तो मुझे बताइए इस पोजीशन पे क्या करना है, इसमें क्या करना है, इसमें क्या करना है, 3 सिनारियो हमारे सामने। सर रेयर +1 मॉड्यूलस मैक्स। ओके, ये कौन से सिचुएशन के लिए बोल रहे हो आप, लास्ट वाले के लिए? यस सर। ओके ओके, और इसमें क्या करेंगे सेकंड वाले के लिए? सर उसमें भी इसको यूज कर सकते हैं, बट रेयर +1 से भी काम हो जाएगा। या तो इन दोनों सिचुएशन के लिए हमें एक काम करना है, हमें रेयर को आगे बढ़ाना है, फ्रंट को कुछ नहीं करना है, और रेयर को कैसे आगे बढ़ाना है, रियर इज इक्वल टू रियर +1 करेंगे, और इस बात से डर हमारा है कि भाई वो कहीं आगे ना चला जाए, तो हम ये मैक्स कर देंगे, ठीक है, तो इन दोनों सिचुएशंस के लिए ये हैंडल कर लेगा मैटर को, ठीक है, दिस कैन हैंडल द मैटर। तो इन दोनों सिचुएशन में हम फ्रंट को बढ़ाएंगे नहीं, हम सिर्फ रियर को बढ़ाएंगे। अच्छा, एक और बात तुम्हें बताना भूल ही गया, रियर वाले पोजीशन में एलिमेंट भी तो जोड़ना है, तो हम एक डेटा नाम का एरे ले लेंगे, और ये बढ़े हुए रियर में, मतलब जिस हमने अभी जो रियर को बढ़ाया है, इसमें एलिमेंट को जोड़ देंगे, ठीक है, राइट, ये काम तो हो गया। अच्छा, इसमें क्या करेंगे, फर्स्ट वाले में कुछ खास बात है क्या? देखो फ्रंट एंड रियर दोनों -1 पड़े हुए हैं, डायरेक्टली एलिमेंट जोड़ सकते हैं क्या, जैसे मुझे ए जोड़ना है इसमें? सर उसमें फ्रंट और रियर को 0 करना पड़ेगा। या वेरी गुड, अब ध्यान से सुनिए, ये एक लौता ऐसा सिचुएशन है जहां फ्रंट को भी चेंज करना पड़ेगा। अगर हमें पता चल गया कि क्यू एम्प्टी है, ठीक है, हमें पता चल गया कि क्यू एम्प्टी है, और आप सोच रहे हैं कि कैसा पता चलेगा, सो इफ क्यू इज एम्प्टी, इज एम्प्टी को पूछेंगे, इज एम्प्टी बोलेगा कि हाँ हाँ क्यू तो एम्प्टी था, तो हम दो चीज करेंगे, हम फ्रंट को भी 0 करेंगे क्योंकि फ्रंट -1 पे था, रियर को भी 0 करेंगे, और हमारे क्यू के 0 वाले पोजीशन पे, मतलब जो पहला पोजीशन है उसमें एलिमेंट को जोड़ेंगे। इसको नोट कर लीजिए, ये एक लौता ऐसा सिचुएशन है जहां पे रियर के साथ साथ फ्रंट को भी चेंज करना है। प्लीज टेक ए नोट ऑफ दिस, अदरवाइज हम जब एलिमेंट को ऐड करते हैं तो फ्रंट को चेंज नहीं करते। आई होप आई एम क्लियर, जब हम एलिमेंट को ऐड करते हैं तो फ्रंट को चेंज नहीं करते, रियर को चेंज करते हैं। लेकिन अगर आपका क्यू अभी तक खाली था और आप पहला एलिमेंट जोड़ रहे हैं, ये पहला एलिमेंट है, ठीक है, दिस इज द कंडीशन फॉर फर्स्ट एलिमेंट, अगर आप पहला एलिमेंट जोड़ रहे हैं तो फ्रंट को भी हमको चेंज करना पड़ता है और 0 में लाना पड़ता है। प्लीज टेक ए नोट ऑफ दिस, दिस इज अ स्पेशल केस, फर्स्ट एलिमेंट का केस। आई विल वेट हियर 1 मिनट फॉर यू फॉर एनी डाउट्स, फिर आगे बढ़ेंगे। एंड दीज 2 कंडीशंस कैन बी टेकन केयर ऑफ बाय दिस, इन दोनों को एक साथ हैंडल कर लेगा हमारा ये वाला लॉजिक, ठीक है, रियर को रियर +1 मॉड मैक्स कर देंगे, तो ये दोनों केस में सही बैठेगा। I hope this is clear? Any doubts? Yeah, any doubts in this? No, sir. Okay. Now let us look at the code. Before going to the code, we have an issue with the deletion also. जब आप डिलीट करते हैं तो भी 2 इशू आएगा। देखो डिलीशन में पहली बात तो डिलीशन इज आल्सो कॉल्ड बाय रेफरेंस। एनी रीजंस व्हाई? डिलीशन भी कॉल्ड बाय रेफरेंस पे क्यों? डिलीशन भी कॉल्ड बाय रेफरेंस पे क्यों काम कर रहा है?
क्या एनी रीजन? डिलीशन क्यों काम कर रहा है कॉल बाय रेफरेंस पे? अरे बहुत इजी है। एनी आंसर्स? बिकॉज वी नीड टू मॉडिफाई द क्यू। जब आप डिलीट करते हैं तो, जब आप मॉडिफाई डिलीट कर रहे हैं तो आप एक एलिमेंट हटा रहे हैं, राइट? नाउ डिलीट करते वक्त भी दो कंडीशन आ सकता है, बताइए कौन से? एक जनरल कंडीशन जिसमें आपके पास एलिमेंट्स हैं लाइक दिस। मान लेते हैं आपके पास एलिमेंट है सी, डी और ई, ठीक है? आप डिलीट कौन से से करते हैं हमेशा? डिलीट कौन से वाले को करते हैं? फ्रंट एलिमेंट। ये आपका फ्रंट है और ये आपका रियर है। ओके, एक और कंडीशन हो सकता है कि आप डिलीट करें और जिसको आप डिलीट कर रहे हैं वो एलिमेंट, मतलब वो एलिमेंट लास्ट एलिमेंट हो, मतलब फ्रंट को रैप अराउंड करना है आपको। ये कौन सा कंडीशन होगा? जब आपका जिसको आप डिलीट कर रहे हैं वो सबसे आखिरी एलिमेंट है, मतलब आप इसको डिलीट कर रहे हैं ई को, ठीक है? आप इस ई को डिलीट करने आए, ये आपका फ्रंट एलिमेंट है। ओके ओके, और एक तीसरा कंडीशन है जो बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो कंडीशन है कि आपके क्यू में एक लौता एलिमेंट बाकी है और आप उसको डिलीट करना है। सो फॉर एग्जांपल यू कैन कंसीडर दिस कंडीशन सी, एक ही एलिमेंट बाकी है क्यू में और आप उसी को डिलीट कर रहे हैं। ऐसे केस में फ्रंट एंड रियर कौन होगा? ऐसे केस में फ्रंट एंड रियर कौन होगा? यही फ्रंट होगा एंड यही रियर होगा, ठीक है? नाउ कैन यू टेल मी कि कंडीशंस कैसे लिखेंगे कि हम हैंडल कर लें सबको? इन दोनों के लिए क्या कर सकते हैं? इन दोनों के लिए कंबाइंडली क्या कर सकते हैं? देखो, सबसे पहले तो चेक करेंगे क्या क्यू एम्प्टी है। अगर क्यू एम्प्टी है, ठीक है, अगर क्यू एम्प्टी है तो डिलीट कर सकते हैं क्या? डिलीट कर सकते हैं क्या? नो सर। ओके, तो कैन नॉट डिलीट एंड रिटर्न माइनस हम वो सब कर लेंगे, ठीक है? अब अगर क्यू एम्प्टी नहीं है, अब हम बात करते हैं क्यू एम्प्टी नहीं है, तो तीन सिनेरियो हो सकता है। मुझे बताइए पहले तो सिनेरियो में क्या कोड लिखेंगे आप? फ्रंट एलिमेंट को डिलीट करना है, लेकिन उसके बाद फ्रंट को आगे कैसे बढ़ाएंगे? क्या लिखेंगे? चलो एक्स नाम के वेरिएबल में फ्रंट एलिमेंट को पकड़ लेते हैं, ठीक है? तो क्यू के अंदर जो एरे है उसके फ्रंट एलिमेंट को कैसे पकड़ लेंगे? क्यू डॉट फ्रंट। चलो एक्स में पकड़ लिया इसको, अब फ्रंट को आगे बढ़ाएं। फ्रंट को आगे बढ़ाएं, कैसे बढ़ाएं? ऐसे बढ़ाएं क्या? फ्रंट इक्वल टू फ्रंट प्लस 1, ऐसे बढ़ाना सफिशिएंट है क्या? सर मॉड, हाँ, ये मॉडलेस मॉड क्यों लगाना पड़ रहा है? ताकि रैप अराउंड हो जाए, ठीक है? मॉड लगा देने से फायदा ये है, ये सिचुएशन होगा तो भी हैंडल हो जाएगा। ये देखो, इसमें फ्रंट जो है यहां से यहां चले जाएगा, मॉड कुछ काम नहीं आएगा, और इसमें फ्रंट यहां से बढ़ के यहां चले जाएगा, 5 + 0 हो जाएगा, ठीक है? सो मॉड कैन टेक केयर ऑफ दिस टू। बट व्हाट अबाउट दिस? जब एक ही एलिमेंट है क्यू में और उसको डिलीट कर रहे हैं तो क्या खास बात है इसमें? सर इसको स्पेशल कंडीशन कर देंगे। इसके बाद क्यू एम्प्टी हो जाएगा। एग्जैक्टली, तो हमको क्या करना पड़ेगा क्यू एम्प्टी हो जाएगा तो? सर फ्रंट और रियर -1। -1 पे सेट करना। या वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, सो मैं अब यहाँ पे, अच्छा पता कैसे पड़ेगा कि एक एलिमेंट है क्यू में? हाउ डू यू नो कि एक एलिमेंट है? फ्रंट इक्वल्स टू रियर। फ्रंट और रियर इक्वल हो जाएंगे। या अब मैं यहाँ चेक करूंगा, अगर मेरे क्यू का फ्रंट क्यू के रियर के बराबर है, मतलब ओनली वन एलिमेंट, सॉरी, ठीक है, अगर एक ही एलिमेंट है, तो पता चल गया कि मेरे क्यू में एक लौता एलिमेंट था, उसको भी आप डिलीट करने के लिए आ गए, तो अब मैं क्या करूंगा? आई विल रीसेट द थिंग टू बिगिनिंग। कैसे रीसेट कर सकते हैं? ठीक है, रीसेट टू इनिशियल कंडीशन। याद कीजिए इनिशियल कंडीशन में क्या था? इनिशियल कंडीशन? फ्रंट और रियर -1। क्यू का फ्रंट -1 एंड क्यू का रियर -1, ये था हमारा इनिशियल कंडीशन। ठीक है,
आई होप दिस इज क्लियर। अब मैं जल्दी से आपको बोलूंगा, प्लीज गो टू द कोड जो मैंने कल शेयर किया था आपके लिए। ये क्यू है। मैं जब तक अटेंडेंस लेता हूं, प्लीज सी द कोड, एग्जीक्यूट द कोड एंड टेल मी योर डाउट्स। ये कोड मैंने बनाया आपके लिए, बिल्कुल वही लॉजिक है जो मैंने डिस्कस किया। टेल मी इफ यू हैव एनी डाउट इन दिस कोड। मीनवाइल मैं अटेंडेंस ले लेता हूं। प्लीज रन दिस कोड। हो सके तो कुछ चेंजेस करके देखिए। Okay, so I'm taking my attendance. Meanwhile, you just go and run the code. Okay. E01 Aditya Thakur. Present, sir. E02 Adiba. Present, sir. E03 Aditi. E04 Aditya Raj. Present, sir. E05 Alpana. Present, sir. E06 Aniket. Present, sir. E07 Anjali. E08 Anurup. Present, sir. E09 Archit. Present, sir. E10 Asma. E11 Ayush. Present, sir. E12 Bhumika. E13 Chaitanya. E14 Devin. Present, sir. E15 Disha. E16 Harsh. Present, sir. Okay. E17 Harsh Nitam. Present, sir. Okay. E18 Hinakshi. Present, sir. E19 Homesh. Present, sir. Okay. E20 Johnson. Present, sir. Okay. E21 Kabir. E22 Khiteshwar. E23 Khushi. Present, sir. E24 Kiran. E25 Krish. Present, sir. Okay. E26 Kunal. E27 Kunal. E28 Kunjal. Present, sir. E29 Lipakshi. E30 Mansi. Present, sir. E31 Naman. Present, sir. E32 Paragi. E33 Parth. Present, sir. Okay. E34 Pranjal. Present, sir. E35 Pratik.